بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بچے یوسف سے 40 سال بعد ملا ہی دیا۔ جب سبھی بھائی مجبور ہو کر مصر شہر آئے اور انہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیں، اس کے بغیر ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو اس قدر پریشان دیکھا تو انہیں ساری حقیقت بتا دی اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے کیسے تم نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ یہ سن کر سبھی بھائی پوچھنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی یوسف ہوں کہ جسے تم لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ سنتے ہی سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے بھائی یوسف، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، آج اللہ نے آپ کو ہم سب پر فوقیت دی ہے اور آپ کو ہم سب سے بڑا بنا دیا ہے، اسی لیے آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی بھائیوں کو اپنے پاس ایک قیمتی قالین پر بٹھایا اور کہا کہ میں نے تم سبھی کو معاف کیا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ میرا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ اے میرے بھائیوں، میرے والد کی کیا حالت ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تو سبھی بھائیوں نے جواب دیا کہ اے یوسف، ہمارے والد یعقوب کی حالت بہت خراب ہے، ان کی عمر 130 سال ہو گئی ہے، بات کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں اور آپ کو یاد کر کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی ہیں، اب انہیں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں۔ والد کی ایسی حالت سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت دیر تک روتے رہے اور پھر اپنا کرتا بھائیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور یہ کرتا میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ تعالیٰ اس کرتے کی برکت سے میرے والد کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے گا، اور پھر سبھی گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی خاطر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں یہ کرتا جنت سے زمین پر اتارا تھا اور فرمایا تھا کہ اے جبریل، یہ کرتا لے جا کر میرے حبیب ابراہیم کو پہنا دو، اس کی وجہ سے ان پر وہ بھڑکتی آگ اثر نہ کرے گی۔ وہ کرتا متکل ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت جبریل نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ اے یوسف، یہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں ہے بلکہ جنت کا لباس ہے، اسے تم اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ جب یہ سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے خوشی خوشی وہ کرتا لے کر اپنے شہر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی کہ اے میرے پیارے نبی یعقوب، اب یوسف سے ملنے کا وقت آ چکا ہے، اسی لیے جلدی ہی تمہارا بچہ یوسف تمہارے پاس ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو ان تک پہنچا دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ اے میرے گھر والوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو، وہ یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور میرا یوسف مجھ سے قریب آتا نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر گھر والے پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یہ بڑھاپے میں کیسی سٹھائی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ یوسف کو مرے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں اور آپ آج بھی ان کی باتیں لیے بیٹھے ہیں؟ گھر والوں کی ایسی باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن انہیں پتا تھا کہ میرے اللہ کا وعدہ بہت جلد ہی سچ ہو کر سامنے آئے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کنعان کے مصر کی دوری 8 دن کے سفر کے برابر تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو پہنچا دی تھی۔ جب یہ سارے لڑکے کرتا لے کر اپنے شہر کنعان پہنچے تو بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ یہ کرتا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے چہرے پر ڈالوں گا، کیونکہ آج سے 40 سال پہلے میں نے ہی وہ جھوٹے خون میں رنگا کرتا اپنے والد کو لا کر دے دیا تھا اور بولا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ اس کا خون میں رنگا کرتا ہے، اسی لیے آج میں اپنے اس گناہ کی بھرپائی کے لیے یہ نیک کام بھی اپنے ہاتھوں سے کروں گا کہ یہ جنتی کرتا اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے چہرے پر ڈالوں گا۔ یہ سن کر سارے بھائی خوشی خوشی راضی ہو گئے اور پھر جب یہ سبھی لڑکے اپنے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی چارپائی پر بے چین ہونے لگے اور جلدی سے اپنے ان بچوں کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بچوں، مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہوا ہے کہ تم کوئی بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو، تو جلدی سے مجھے بتاؤ کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ والد کی ایسی بات سن کر سبھی لڑکے ان کا پیر پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے سروں پر
हाथ फेरते हुए कहने लगे कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ तो सही कि आखिर क्या हो गया है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो। तो बड़े भाई यहूदा ने हिम्मत करके बताया कि ऐ मेरे अब्बा जान, हमें माफ़ कर दो, आपका बच्चा यूसुफ आज भी जिंदा है। जिस मिस्र के नेक बादशाह के बारे में हम आपसे बातें करते थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारा भाई यूसुफ है। अब्बा जान, वो बहुत नेक और सच्चे बादशाह हैं। बेटे यूसुफ के बारे में ऐसी बातें सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए और फिर बड़े बेटे यहूदा ने उठकर वो जन्नती कुर्ता अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि जैसे ही वो कुर्ता चेहरे से हटाया गया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और वो घबराकर अपने सभी घर वालों को देख रहे थे। वालिद की आंखों में खुशी की झलकियां साफ नजर आ रही थी। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी घर वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ मेरे घर वालों, तुम मुझे सटियाया हुआ बुढ़ा समझते थे, लेकिन मैं तुमसे कहता था ना कि मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मैं जानता था कि मेरा बच्चा यूसुफ जिंदा है और वो एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएगा। तो ऐ मेरे घर वालों, देख लो, आज वो दिन आ गया है, मेरा बच्चा यूसुफ मुझसे मिलने आ रहा है। यकीनन मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है। ये सुनते ही सारे घर वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पैर पकड़कर रोने लगे और कहने लगे कि अब्बा जान, हमें माफ़ कर दो, हम सब बहुत बड़ी गलती में थे, आप अल्लाह से हमारे लिए इस्तगफार करें और अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों को उठाया और कहा कि ऐ मेरे बच्चों, परेशान ना हो, मैं अल्लाह से तुम सब के लिए इस्तगफार करूंगा, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। फिर बड़े बेटे यहूदा ने आगे बढ़कर कहा कि अब्बा जान, चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम सभी मिस्र शहर में जाकर रहेंगे, क्योंकि हमारे भाई यूसुफ ने सभी घर वालों को अपने पास मिस्र बुलाया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और सारे घर वालों ने जल्दी जल्दी सामान तैयार किया और फिर मिस्र शहर की तरफ रवाना हो गए। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर अल्लाह की हम्द जारी थी और मिस्र की तरफ बढ़ने वाले हर कदम पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें इतनी लंबी आजमाइश के बाद अपने बेटे यूसुफ से मिलने का मौका दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अंदर खुशी की मौजे अंगड़ाइयाँ ले रही थी और कदम तेजी के साथ मिस्र की तरफ बढ़ते जा रहे थे। 8 दिनों का सफ़र करके ये काफिला मिस्र शहर पहुंचा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि मेरे वालिद मिस्र शहर के करीब आ चुके हैं, तो अपने साथ 4000 की फौज लेकर उस रास्ते पर जाकर खड़े हो गए जहां से उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अभी कुछ ही देर में आने वाले थे। सामने एक पहाड़ था कि जिसकी दूसरी तरफ से कुनान का रास्ता चलता हुआ मिस्र के अंदर आता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ की इस तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम डंडे के सहारे से धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और दूर खड़े अपने बेटे यूसुफ पर नज़र पड़ी तो ज़माना करवटें बदलकर 40 साल पीछे चला गया और अपने जवान बेटे यूसुफ के अंदर वो छोटा सा यूसुफ नज़र आने लगा कि जो घर में खेलता हुआ कभी तो छत की तरफ दौड़ता तो कभी बाहर की तरफ भाग जाता, कभी अपने वालिद से जिद करता कि मुझे बाजार में घुमाने ले चलो और कभी उनके हाथों से बैठकर खाना खाता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते जा रहे थे और दिल में खुशी की लहरें मौजें मार रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जैसे ही अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा तो तेज कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने खड़े थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत देर तक अपने वालिद का चेहरा देख देख कर रोते रहे और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे यूसुफ को गले से लगा लिया और आंखों में आंसुओं की एक लड़ी बंध गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक शिकवे के अंदाज में अपने बच्चे यूसुफ से कह रहे थे कि ऐ मेरे बच्चे, तुम बुढ़ापे में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हारी याद में रो रो कर अपनी आंखें खो बैठा। कोई लम्हा, कोई पल ऐसा ना गुजरता कि मुझे तुम्हारी याद ना सताती हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान, ये अल्लाह की तरफ से हमारी आजमाइश थी और अल्लाह सब्र करने वालों का अच्छा अंजाम दिया करता है। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को एक शाही सवारी में बिठाकर अपने महल की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि उस वक्त जब मिस्र का असली बादशाह कि जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीरे खजाना बनाया था, उसकी वफ़ात हो चुकी थी। इसीलिए लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अच्छे अखलाक को देखते हुए उन्हें अपना बादशाह बना लिया था। तो जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से आकर मिले तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी मिस्र पर हुकूमत चलती थी। महल में पहुंचकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सभी घर वालों को एक खास कालीन पर बिठाया और फिर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने शाही तख्त पर बिठाकर
खुद उनके पास बैठ गए। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही तख्त पर बैठे तो सभी भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। दोस्तों, इस्लाम में सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है, किसी इंसान के लिए नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, उनमें किसी बड़े इंसान की इज्जत के लिए उसे सजदा ताजीमी करना जायज़ था। जैसा कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सारे भाई सजदे में चले गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना वो ख्वाब याद आ गया कि जो उन्होंने बचपन में देखा था। तो वो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए मेरे अब्बा जान, ये मेरी उसी ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था और आपको आकर बताया था कि आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद व सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो आज 40 साल बाद अल्लाह ने मेरे उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इस वाक़ये के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिस्र शहर में रहने लगे और एक लंबे जमाने तक उस शहर पर हुकूमत की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आने के बाद सिर्फ 17 साल ही जिंदा रहे और फिर 147 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त अपने सभी लड़कों को पास बुलाकर कहा कि ए मेरे बच्चों, मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा गम सताता है, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? तो सभी लड़कों ने कहा कि ए अब्बा जान, आप जो पूछें हम उसका ठीक ठीक जवाब देंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए मेरे बच्चों, मेरी वफात के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सभी लड़कों ने एक होकर जवाब दिया कि हम उसी जात की इबादत करेंगे कि जिसकी हमारे बाप दादा इबादत करते आए हैं। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बच्चों, मेरी वफात के बाद मेरी ये वसीयत अच्छी तरह याद रखना कि मेरा जिस्म मिस्र में दफन ना करना, बल्कि उसे कुनान शहर ले जाकर जहाँ तुम्हारे दादा इब्राहिम व इसहाक की कब्रें बनी हैं, वहीं मुझे दफन कर देना। वालिद की वफात के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। वक्त गुजरता गया, सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ महल में शहजादों वाली जिंदगी गुजार रहे थे। आखिर एक लंबी मुद्दत के बाद 120 साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी वफात हो गई और उन्हें मिस्र में ही दरियाए फुरात के किनारे दफन कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र उनके बाप दादा हजरत याकूब व हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ही बने। इसीलिए जब कई सालों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जुल्म सितम से परेशान होकर मिस्र शहर को छोड़कर जा रहे थे, तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि ए मूसा, अपने साथ मेरे प्यारे पैगंबर यूसुफ के जिस्म को भी लेकर जाओ और उन्हें कुनान में उनके बाप दादा की कब्रों के पास दफन कर दो। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी और उनके जिस्म को एक लकड़ी के ताबूत में रखकर कुनान शहर ले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उनका जिस्म आज भी सही सलामत था और उस लकड़ी के ताबूत में एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। प्यारे दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हो चुका है। बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नबियों की ज़िंदगी के बारे में अच्छी मालूमात हासिल हो सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।